4 attendees, no. अभी तो थोड़े लोग ही हैं. Okay, just wait for a moment. मैं अभी थोड़े और बच्चों का इंतजार कर रही हूँ. Then I'll start my topic. Okay, now I have how many? I have lots of attendees, so now I can start. So our topic was barriers to communication. I hope that you all have understood it very well. So I need your feedback. What do you think? मैम आपने अभी तक स्लाइड्स नहीं शेयर की. हो गई. आपके उसमें ये नोट्स फाइल अपलोड हो चुकी है. मेरा टीम्स के उसमें जनरल उसमें सेक्शन के उसमें ये फाइल जहाँ बाकी नोट्स हैं ये भी अपलोडेड है. अच्छा, सो व्हाट वाज द लास्ट बैरियर्स जो हमने पढ़ा था? एनीवन रिमेंबर? Linguistic barrier. Organizational barriers, and then we discussed the problems, barriers related with the message. Semantic. Yes, semantic and linguistic. अच्छा, आप उससे आगे नहीं पढ़ा था? मैम स्लाइड्स ही नहीं थी मिली. स्लाइड्स अभी शेयर हुई हैं. स्लाइड्स आज ही शेयर हुई हैं. चले मैं दोबारा उसी टॉपिक उन्हीं नोट्स को खोलती हूँ एंड देन आई विल. Yes. We discussed in detail semantic and linguistic barriers. ठीक है ना? उसमें मैंने आपको बोला ये था कि हमें जो लैंग्वेज हमने यूज करनी है ना, सबसे पहली बात तो सिंपल वही कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए. वही लैंग्वेज हो जिसमें आप इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल और अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल, ऑफ कोर्स whether in written or in oral medium, they cannot understand. Other than the same language or without this language barrier, there are other things, and that are the use of jargons and things like that. So formal communication never uses slangs. Slangs not always mean some abusive words. Even if the words are not abusive, sometimes they are only comprehensible for a certain society. ठीक है ना? तो there are a few words which, although especially with regard to English, they keep on adding new words to their dictionary. English vocabulary में वो words नए ऐसे शामिल होते जा रहे हैं. For example, you must have heard about word kebab, Taliban, and there are certain words which are Urdu or Hindi, and now they are a part of English language as well. But still there are lots of words which we use within ourselves, but we should make sure when we are communicating with outsiders
they are not being used as part of your written or oral draft. So, or jargons, specialized terms or specialized word used within a working situation or a certain industry or a field, they are only comprehensible within, if you are communicating within that society or within that community. For example, I'll give you an example. आपके कंप्यूटर की ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आप जो कंप्यूटर रिलेटेड टीचर्स हैं, if you talk to them in that way, you can communicate well or your message can be conveyed without any problem. But the same words are not jargons are not comprehensible for your other teachers like me or your Islamiyat or a Pakistan studies teacher. So उनके लिए आप अपने वो स्पेशलाइज्ड टर्म नहीं यूज कर सकते. अच्छा, ऐसे ही डॉक्टर्स का होता है, वो होता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स में थोड़ा सा फर्क ये चीज आ जाती है कि आपने ये देखना है कि दूसरे बंदे की लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी कैसी है. अब इंग्लिश के बहुत स्कॉलरली या डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो बाज का जनरल स्टूडेंट नहीं, जनरल लोग नहीं समझ सकते. फॉर एग्जांपल, there is a word paradigm. Can any one of you, although you are you can understand English, can tell me the meaning of paradigm? बताएं. Yes. मैम methodology. Methodology, yes, but it's more than methodology. ठीक है ना, जहाँ वर्ड मेथोडोलॉजी यूज होना है वहां पे आप पैराडाइम नहीं यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बता रहे हैं अगर आप किसी रेसिपी को डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे पैराडाइम. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस. इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी वर्ड फेस से कि फेस वर्ड जो है इसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूजेस हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर बॉन्ड may not be comprehensible for each and every one. ठीक है. So आपको linguistic barriers को भी remove करना है. You have to keep in mind that the other person is not going to misunderstand the used word. For example, I am telling you about the word paradigm. Now, paradigm is a word that is totally used for academic or scholarly purposes. Get it? Although you can say its meaning is methodology, but it is used in a very different manner. Not everywhere you can replace the word methodology with the word paradigm. It refers to a whole, phenomenon of conducting scholarly or academic research or way of thinking or way of, working in a certain academic situation. अंडरस्टैंड दिस. एंड आई रिमेम्बर पिछले दिनों किसी बच्चे के मैंने उसमें पैराडाइम का वर्ड यूज भी हुआ देखा था, आई थिंक फाइनल्स में या किसी उसमें. और ऑफ कोर्स बीइंग अ टीचर मैं समझ गई और मुझे समझ आ गया कि ही हैज जस्ट सिंपली रिप्लेस द वर्ड मेथोडोलॉजी और वे ऑफ एक्टिंग को उससे कर लिया. बट एक सिंपल लेमैन के लिए ये वर्ड कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है. even that student whoever, बल्कि I thought of कि मैं इसे नोट डाउन करती हूँ और मैं पूछूंगी उससे, because it's a totally different word जो कि हम ग्रेजुएट्स को भी उस वक्त तक नहीं पता चलता जब तक कि वो रिसर्च या थीसिस कंडक्ट नहीं करते. ठीक है. तो अब अगर ये वर्ड आपने यूज किया किसी जगह तो you have to make sure that your audience or your receivers can understand it in fully its terms. ठीक है. You understand this? अच्छा. The difference between semantic and linguistic barriers. So if you are given such a question जिसमें आपसे को कोई एक situation बताई जाए और पूछा जाए what barrier was there to serve as a barrier into communication, so you should be able to differentiate and understand the difference between these two. Past experiences, you know that we always communicate according to our past experiences. It's not with the same situation. Even अगर आप किसी जगह first time communicate करने लगे हैं लेकिन आपका कोई भी एक past experience bad, negative या positive है तो आपकी communication उससे highly affect होती है.
Can you give me an example of this where your past experiences caused a hurdle into communication? Think of an example. Can be both ways, positive भी, negative भी. सोचो, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो खुदा के लिए. प्रेजेंटेशन में मैम. एग्जैक्टली प्रेजेंटेशंस में होता है. अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी वर्किंग सिचुएशन में काम करते रहे हैं जहाँ पे समटाइम्स सम पीपल हैव ओपन डोर पॉलिसीज. ठीक है, उसमें जो आपका बॉस या आपका सीनियर्स थे, ठीक है, दे वर इनकरेजिंग दैट एवरीवन कैन वॉक इन एंड टॉक टू एनीवन. आपने जैसा देखा होगा मॉडर्न ऑफिसेज अक्सर इस तरह से बने होते हैं दैट दे हैव अ सेम फ्लोर और उसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेस्क होते हैं और वहाँ पे उसका मकसद ये होता है कि कोई भी किसी से फॉरेन कांटेक्ट कर ले. They do not go for many formalities or many intermediary channels. So if someone has worked in such an environment and next time he joins an organization जिसमें के typical वो ऑफिस वाला है कि अगर आपने हेड से मिलना है तो पहले उनके पीए से मिले, पीए तक जाना है तो उससे पहले बाहर खड़े पीएन से पूछे, ये वाला एक उसके अंदर है. And a person who has a good past experience that I can simply walk in and talk to my head, वो या सीनियर वो चला जाता है तो मे बी he is discouraged और कुछ भी ऐसा हो सकता है. ठीक है ना. सेम वे नेगेटिव भी हो सकता है. अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि किसी सीनियर को मिलने से पहले 3-4 स्टेप्स और लोगों के साथ रास्ते में आपने पहले कम्युनिकेट करना है तो वो लोगों के दरमियान फिरता रहेगा और मे बी द इंचार्ज पर्सन इज वेटिंग फॉर और दैट पर्सन. तो वो ये नहीं, ये सारे आपके पास एक्सपीरियंसेस तो बहुत काउंट करते हैं. प्रेजेंटेशंस में बहुत काउंट करता है. इफ यू आर कि आप अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल से आपका कोई बहुत पॉजिटिव रहा है तो नेक्स्ट टाइम यू आर वेरी मच कंफर्टेबल. इसी तरह किसी के साथ बहुत नेगेटिव रहा है तो वेदर यू हैव द कैपेबिलिटी और द राइट मटेरियल बट यू आर वेरी मच एंशियस, योर टेंशन लेवल इज हाई और आपको उसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन बेस करती है. तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस and to communicate appropriately you have to analyze and evaluate the situation right over there. Get it? तो आपने strictly अपने एक जो rules हैं उनको follow करना है, अपने past experiences को एक second के लिए भुला देना है. I'll give you an example. Teachers के साथ जैसे for example किसी एक क्लास में आपने कुछ present किया and कुछ भी हो गया, किसी वजह से presentation अच्छी नहीं हुई और आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, तो अगर आपने नेक्स्ट टाइम किसी और नई सिचुएशन में करना है, इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पास्ट एक्सपीरियंस यू वोंट बी एबल टू प्रेजेंट एनी मटेरियल. सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन अ स्टेट वेयर यू आर टोटली देन एंड देयर. आपको किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफ कोर्स वी डू, अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हैं तो उनसे कुछ सीख के आगे बढ़े और अगर पॉजिटिव हैं तो उनको सोच के अपने आप को नर्वसनेस और ये चीज़ों से बचाएं. सेम वे चाहे रिटन है, आपका ओरल मीडियम नहीं है, while writing an application and things like that, all do not base your communication on the past experiences, rather evaluate it on the basis of the rules and regulations. जो भी एक प्रॉपर तरीकेकार है उसके ऊपर बेस करें. ठीक है. इसकी एक और एग्जांपल मैं ये देती हूँ. हमारे टीचर्स में ये चीज़ हो जाती है कि अगर किसी एक ग्रुप के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो वो बाकी लोगों को हमेशा थोड़ा नेगेटिव उसमें उनका एक स्टूडेंट्स की तरफ हो जाता है एटीट्यूड, ये तो होंगे ही चीटर, ये तो होंगे ही ऐसे. ऑल्दो थिंग्स हैपन द सेम वे समटाइम्स बट यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग पॉजिटिवली और आपको हमेशा पॉजिटिव उससे ही अपनी कम्युनिकेशन को बेस करना चाहिए. Get it? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमने पढ़ लिया. वही वाली बात कि जितने ज्यादा जैसे कहते हैं ना हायरार्की ज्यादा होगी कि दरमियान में बहुत सारे लोग हैं, वो उतना ज्यादा बैरियर्स और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ठीक है. ये तो हमारे टिपिकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें ये सब कुछ है. अनक्लियर प्लानिंग, स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टाइमिंग, टेक्नोलॉजी, स्टेटस डिफरेंसेस, these are all organizational factors. They may act as a barrier to communication. अच्छा जी, टेक्नोलॉजिकल फेलियर.
सिंपली कोई टेक्निकल रीजन हो गई, उसके बाद टाइम प्रेशर, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हैव वी रेड इट क्लास? हेलो? नो मैम, नो मैम, मैम अभी ये नहीं तो पढ़े। नहीं पढ़े थे? चलिए मैं आज पढ़ा रही हूँ। नो बास्केट, आई जस्ट कंफ्यूज थिंग्स विद द अदर सेक्शन। टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स, as the name itself indicates, message not delivered due to technical failure। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज ही नहीं आती, इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, या आपके साइड पे, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है, किसी वजह से पोस्ट नहीं पहुंची, मेल नहीं पहुंची, ये सारी चीजें। टाइम प्रेशर, often in organization the targets have to be achieved within a specified time period, the failure of which may have adverse consequences for the employee. In a haste to meet deadlines, usually an employee tries to shorten the formal channels of communication that can lead to confusion and misunderstanding among the various levels of supervisors, hence leading distorted communication. Therefore, sufficient time should be given for effective communication. कोई भी चीज आपकी स्पेशली किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पर ऑफ द मोमेंट के ऊपर डिसाइड नहीं हो सकती। मुझे एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, चाहे ऑनलाइन करने हैं, आई हैव टू टेल माय अदर दूसरे टीचर्स को बताना पड़ता है आपको, इसीलिए डेट शीट वगैरह बहुत वेल इन एडवांस तैयार की जाती है। आई गिव यू एग्जांपल फ्रॉम योर सिचुएशन, बट यू हैव टू एम्प्लॉय और थिंक ऑफ दैट सेम प्रॉब्लम इन अदर ऑफिस फॉर्मल बिजनेस सेटिंग एज वेल। आपने कोई ऑर्डर मिला है आपकी फर्म को, तो उसका टाइम अगर बहुत शॉर्ट है, तो सम टाइम कोई बीच में लोग इन्वॉल्व अगर नहीं हो सकते, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। आपने यानी हर लेवल के ऊपर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव कम्युनिकेटेड अबाउट द टाइम और डेडलाइंस, ताकि हर कोई उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो। आपने आपकी फैक्ट्री को, यू आर वर्किंग इन अ गारमेंट फैक्ट्री, यू गॉट एन ऑर्डर कि आपने विद इन अ वीक तैयार करके देना है, तो जिन लोगों ने इसका रॉ मटेरियल खरीदना है, उनसे लेके जिन लोगों ने आगे उसको तैयार करके उसकी शिपमेंट पैकिंग करनी है, हर शख्स को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की हमें इस वक्त अर्जेंसी है, या कौन सी चीज़ को वी कैन डिले और वट एवर। गेट इट? सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप टाइम को टाइमली रिस्पॉन्स लेने के लिए सबको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म्ड रखें। सो रिमेंबर दैट। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये किसी तक इसमें भी आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो हो जाता है। लेकिन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और प्रॉब्लम्स रिलेटेड, सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? सोचो। पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ। ग्रेटर द हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मोर द नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, more are the chances of communication getting destroyed. Only the people at the top level can see the overall picture, while the people at low level just have a knowledge about their own area and a little knowledge about other areas of organization. Give me an example. इसकी और इसकी organizational barrier. Complexity in organizational structure जो है, if you are the in charge or you are working in a situation, you have to work on to it कि आप इसको minimize करें। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर नॉट सम टाइम इन योर हैंड्स, आपके कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें आपने तो ये चीजें किसी हद तक कंट्रोल कर ली कि सारे मैसेज कम्युनिकेट वक्त पे हो गए, बट आपको व्हेन यू हैव टू डील विद आउटसाइडर्स, विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है वो बहुत प्रॉब्लम बन जाते हैं। ठीक कि आपने कम्युनिकेट करना है तो आपका लेटर पहले यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। सो there are fine slight differences of concept. You should be capable of comprehending both complexity in organizational structure as well as organizational barriers. Can anyone give me an example? मैम, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने जाते हैं
तो काफी इसका सामना करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के कि इधर सिग्नेचर नहीं है, दैट इज एन जो ऑर्गेनाइजेशनल, पास है वो सिग्नेचर करेगा। एग्जैक्टली ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हो यही होता है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर व्हेन यू कि आप इनको करने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए इनफ टाइमली प्लान करो। पहली बात, अपने मैसेज के अंदर इतना टाइम मार्जिन रखो। दूसरी बात ये कि आपने जैसे ही एक लेटर लिखा है, अगर उसकी 3-4 जगह से अप्रूवल चाहिए तो मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग इट एवरीवेयर। गेट इट? कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अब ईमेल्स के अंदर आपने देखा होगा सीसी और वो सारा कुछ दिया जाता है, क्योंकि सेम टाइम पे सब लोगों को सब कुछ कन्वे हम कर देते हैं, बजाय इसके कि हम इस बात का इंतजार करें कि हमें वहां से ये बात पता चले। आगे बात समझ? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने ये सारे प्रॉब्लम किसी हद तक कम कर दिए हैं, क्योंकि अब ईमेल्स और एसएमएस या व्हाटएवर इसके जरिए फॉरेन चीजें शेयर हो जाती हैं। अच्छा, नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, barriers related with the message. Of course, this is last but not the least. यानी there can be 101 more barriers भी हो सकते हैं. These are a few which we have discussed. और हर सिचुएशन में उस वक्त क्या बैरियर आया, ये आपको जब ही पता चलता है जब आप उस सिचुएशन में काम कर रहे होते हो। अभी हम पूरी कोशिश करेंगे टू लर्न दिस स्किल कि हम सारी बेहतर सीख जाएं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आता है। अगर आप एक मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ लोगों की कुदरती अच्छी होती हैं, बट अदर पीपल स्टिल यू हैव टू लर्न मोर। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन के ईच एंड एवरी बिट का पता हो कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बैरियर्स रिमूव कर सकते हो, उसके अंदर खुद इफेक्टिव सारी चीजें डाल सकते हो, तो फिर ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी फेस अ सक्सेस। अब ये जो बैरियर्स रिलेटेड विद द मैसेज है, अब पहले हमने सारी कॉन्टेक्स्ट की बातें की, समझे, हमने टेक्निकल उससे लेके ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें डिस्कस की, बट द मैसेज इटसेल्फ, हाउ इट शुड बी रिटन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनक्लियर मैसेज, सारा कुछ टाइमली रिस्पॉन्ड कर दिया, सारे बैरियर्स को क्रॉस कर लिया, कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज सही कर ली, लेकिन मैसेज खुद सही नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद अ क्लियर मैसेज. Unclear messages in terms of meaning, grammar, words may act as a barrier to communication because the receiver may not be able to intercept the actual meaning of the message. डेट सही नहीं लिखी गई, टाइमिंग्स नहीं मेंशन किए गए, ये वो चीजें आ जाती हैं। ऑफ कोर्स कंटेंट मैटर्स। इसके अलावा stereotypes are beliefs or generalization about characteristics or qualities that are felt to be typical of a particular group. इसी तरह स्टीरियोटाइप्स, हमारे दिमाग में पहले से एक बाइस्ड ओपिनियन होती है किसी चीज के बारे में, ये वहां से मैसेज आया ऐसा होगा, ये वहां से मैसेज आया वैसा होगा, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन बिकॉज पीपल विद स्टीरियोटाइप थॉट्स either will not read the message completely or will not read it at all because of their thinking that they already know everything. So keep in mind, उसके लिए हमें मैसेज के उसके ऊपर भी काम करना होता है। गेट इट? कि मैसेज कैसे हो। अब ऑफ कोर्स सारी चीजें मैटर कर, चैनल, रिसीवर, सारा कुछ आपने सोच लिया, लेकिन अगर आपने मैसेज जो इटसेल्फ है, मीडियम कैन बी एनीथिंग, आप वर्बली बोल रहे हो लोगों के आगे, या आप उसके लिए क्या कहते हैं उसको रिटन फॉर्म में दे रहे हो, खुद इटसेल्फ मैसेज का क्लियर होना और बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो पिछले भी हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, ये वो, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी जनरल पब्लिक लेवल पे और उस पे। सो आपने सोचना है कहाँ मैसेज की वर्डिंग या ऐसी चीज थी जो एक बैरियर के तौर पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हायर हुई। सो नाउ यू हैव टू टेल मी, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अनक्लियर मैसेज। गिव मी एन एग्जांपल। यस मैम कोई ऐसा मैसेज हो जिसमें हम डैंगलिंग पार्ट यूज किया हो। डैंगलिंग पार्ट्स भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली हमें सही तौर से पता ही नहीं चला किसको कहाँ क्या करना है, एग्जैक्टली। यस मैम। मैम जैसा कि अक्सर ना सीआर ग्रुप में मैसेज कर देता है कि ये मैम ये कह रहे, लेकिन वो ये नहीं साथ मेंशन करता कि कौन सी मैम है,
किस बुक बुक कौन सी है, ये सारी चीज। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं। सॉरी, गूगल ट्रांसलेटर यूज करना, ओफ हाँ गुड। ओ खुदाया, मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे जैसे मैंने आप लोगों के एसेस पढ़े हैं, टेक्स्ट ब्लेंडर और पता नहीं किस 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 में डाल डाल के आप लोगों ने जो मुझे दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, कि खुद इटसेल्फ मैसेज टोटली अनक्लियर हो जाता है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, मैंने उसको आपसे शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। सो देयर इज अनदर टर्म विच वी कॉल 7 C's। अच्छा, इट्स अ प्रेजेंटेशन। अभी आप यहीं पे रुके। पहली बात मैं बता दूं, दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। ये कोई इंडियन बनी हुई है, बट इट इज वेरी गुड एंड इफेक्टिव, एंड आई गॉट इट फ्रॉम द जीसी यूनिवर्सिटी के ही जो पहले एक टीचर थे, उनसे ही मुझे मिली थी, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी गुड जो इस चीज को एक्सप्लेन कर देती है। तो ये मैं आपको इसके जरिए समझाऊंगी। आप अदरवाइज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिख के कहीं भी गूगल करेंगे तो ये चीजें आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। और ये उसने स्कॉलर ने ये डिफाइन किए थे, उनको अगर आप गूगल कर लो कहीं से भी तो इसकी पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। अच्छा, अब जहां हमने मैसेज के ऊपर फोकस किया कि मैसेज इन इटसेल्फ शुड बी कंप्लीट एंड कन्वेइंग फुली व्हाट इट इज मेंट फॉर, तो उसमें क्या रूल्स है, उसमें हमें क्या होना चाहिए। For transmitting effective written or oral messages, certain principles must be followed. So remember all these. These principles are advocated by Francis J. Burton, provide guidelines for the choice of content and style of presentation adapted to the purpose of the receiver. ठीक है ना? What does it mean? कि while you are drafting a message, आपने चाहे एक पब्लिक स्पीच करनी है, चाहे आपने किसी को रिटर्न कोई एप्लीकेशन देनी है, बट दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स विच शुड बी देयर, ठीक है। दीज दे आर अडेप्टेड टू द पर्पस ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज, ठीक है। ये जो आप जिसके लिए आपका मैसेज है उसके लिए आपने जहन में रखते हुए इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। मीन्स जो कुछ आप सोच रहे हैं, आपने अगर उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं कि एज इट इज your words are going to be perceived the way you wanted them to be perceived, so you have to keep in mind these 7 principles. If these 7 qualities are there into your verbal or written message, they are a guarantee of not causing any confusion or misunderstanding. They are completeness, conciseness, clarity, correctness, consideration, courtesy, concreteness. Now you tell me, while looking each and every one, okay, you may feel a few of them are like similar things. For example, completeness and correctness, but these all qualities starts with C and they are there as a separate entity. So you have to make sure whatever you are going to tell or say, even through words or through, in written format, they should have all these things. They should be complete, concise, clear, correct, considerate, courteous, and concrete. Do you feel that a few of them are overlapping? आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं इनमें से किसी एक की भी? मैम कंसाइजनेस और क्लैरिटी की यस मैम, क्या है इनमें? करेक्टनेस और ये कंसाइजनेस नंबर 2 और 4। They are same, you feel? यस मैम। What does concise mean? मैम कंसाइज में आ जाता है कि यानी टू द पॉइंट बात लिखी हो। Exactly, यानी शॉर्ट हो, कम से कम लफ्जों में। आपने सही बात करी, बहुत लंबी वेग स्टेटमेंट ना हो, करेक्ट सही भी हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इन सबको इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, बिकॉज दे आर देयर और ऑफ कोर्स दे आर एज अ सेपरेट पॉइंट और अ सेपरेट प्रिंसिपल, सो देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस। गेट इट? यही मैं आपसे कह रही हूँ, ये सारे के सारे बहुत ओवरलैपिंग, दे आर ऑल सीम टू बी
the same thing sometimes, but there is a huge difference. So we need to understand them differently so that we can take care of each and every principle, and while drafting our message or preparing our message, we should keep in mind all this. So that is why I have just related it with the barrier or with the problem related to the message. If you take care of these 7 principles, you are going to have a message that is very precise, clear, comprehensible, complete, and everything. So we are going to read it one by one. Completeness. Of course, अगर आपने like अभी someone has given me an example कि teacher का नाम ही नहीं है अगर तो message complete नहीं है. You won't be able to understand it. Every communication must be complete and adequate. Incomplete messages keep the receiver guessing, create misunderstandings, and delay actions. Every person should therefore be provided with all the required facts and figures. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला एक फैक्ट्री को अगर एक मिला है, एक कंसाइनमेंट मिली है, सो इवन एनी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में कहीं एक शख्स भी अगर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है अबाउट दिस, so problem हो जाएगा, you won't be able to perform accordingly. For example, when factory supervisor instructs workers to produce, he must specify the exact size, shape, quality and cost of the product. Any assumption, अगर आपने उसमें even cost नहीं डाली that हमारी product इस range में होनी है तैयार, so of course the problems can be there कि कोई उसकी सारी चीजें हो गई, quality बहुत हो गई मगर वो कॉस्ट के उससे बाहर हो जाती है. ठीक है, एनी assumption behind the message should also be clarified. Do not think, हम समटाइम कहते हैं ना, assume करते हैं कि हाँ ये तो पता ही होगा. ठीक है, so no assumptions. Any assumptions behind the message should also be clarified. While answering a letter, all the questions raised in the letter must be replied. Never assume कि ये तो पता ही होगा. और आपने देखा होगा ऑफिशियल लेटर्स और उनके अंदर एक एक डिटेल एडेड होती है. ऑल्दो समटाइम यू फील कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट एज अ रूल एवरी मैसेज शुड बी कंप्लीट ऑन इट्स ओन. इवन इफ इट इज अ रिस्पॉन्स लेटर, इट इज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग जो कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके अंदर उस लेटर की डेट तक भी लिखी हुई होती है. ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर डेटेड, आगे उसकी डेट्स और वो सब मेंशन होती हैं और समटाइम उसकी कॉपी अटैच्ड होती है. सो रिमेंबर, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इवन अ सिंगल डॉट. आपको अभी जब फॉर्मल लेटर लिखने को दिए जाएंगे तो उसके अंदर टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, उसके अंदर एक एक चीज के मार्क्स होंगे. ठीक है, अभी वो भी नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा. सो कंप्लीटनेस इज द मस्ट थिंग. डू नॉट एज्यूम कि ये तो पता ही होगा. नो, प्लीज डू नॉट. डेटशीट आ रही है तो उस पर अगर मिड की है तो मिड टर्म लिखना है. ये नहीं करना, आपने अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखे हैं ना, उसके अंदर जीसी यूनिवर्सिटी ये हालांकि पता ही है ना जीसी यूनिवर्सिटी में है, आप ही की यूनिवर्सिटी में, लेकिन वाई द स्पेशल लेटर हेड और वो सारी चीजें होती हैं ताकि कहीं भी किसी जगह भी उसके रेफरेंस की जरूरत पड़े, ईयर, डेट, टाइम, व्हाटएवर, every information should be there. So your every draft should be very complete in the nature. Conciseness. अब अभी जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था, अब completeness और conciseness basically go against each other. Concise का मतलब ये है कि it should be shortness नहीं है, word conciseness है, क्योंकि complete होते हुए भी बहुत ज्यादा उसको जिसे आप कह रहे हो स्मार्टली ड्राफ्ट करना चाहिए, जिसके अंदर मिस आउट भी कुछ ना हो मगर वो शॉर्ट भी हो. इन बिजनेस कम्युनिकेशन यू शुड बी ब्रीफ and be able to say whatever you have to say in fewest possible words without sacrificing the other C qualities. वो other C qualities सारी आ जाती है अभी जो आप पढ़ते जाएंगे, जिसमें से एक आप भी वही है कि कंप्लीट होना चाहिए मगर उसके साथ साथ छोटा होना चाहिए. Conciseness is desired because of the following benefits. Number 1, a concise message saves time and expense for both sender and receiver. Conciseness contributes to emphasis, ठीक है ना, by eliminating unnecessary words. बहुत लंबा मैसेज हो, आप कहें कंप्लीट तो है मगर उसमें जो असल बात है वो ढूंढते ढूंढते ही आप रह गए. Conciseness contributes to emphasis by eliminating unnecessary words. You let important ideas stand out.
When combined with a you view, a concise messages are inherently more interesting to recipient as they avoid unnecessary information. अब इसके ऊपर you view क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ. This is a new term. Think of it. Yes. Anyone? जो एक बच्चे आंसर कर रहे हैं एक दो वही कर दे, बाकी क्लास की तो फिर मैं सीपी में 0 लगा दूंगी बस. हेलो, सो गई है मेरी क्लास? नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, लाइट चली गई है. किस किस की लाइट चली गई है? किस किस की लाइट चली गई है बताएं. 73 की मैम. बाकियों की तो है ना. मैम यू हाँ, में I need an answer तकरीबन from यही होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कंसाइज करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग कंसाइज करते हैं कि इसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और कुछ होते हैं जो कुछ और व्यूज से देखते होते हैं उन चीज़ों को. कंसाइजनेस. ये एक अलग बात है कि किसके कंसाइज होते हैं मैसेज, किसके नहीं. मैंने जो सवाल आपसे किया था वो था when combined with a you view, concise messages are inherently more interesting to recipient as they avoid unnecessary information. जहां मैंने अभी आपको on one place I just told you that a message should be totally complete, कि वो complete होना चाहिए. Same way I'm also saying that make it short, say it in a few words. Get it? So these two qualities should be there. You are writing an application, so it is required that you mention. For example, आपने head of the department से कोई भी आप किसी वजह से कोई भी आपको लीव चाहिए, आपके अटेंडेंस का कोई मसला, whatever it is, ठीक है ना. सो आपने जहां अपना रोल नंबर, अपना ईयर, सेशन, ये वो सेक्शन, ये इंफॉर्मेशन देनी है, उसके साथ साथ अगर आप इस तरह की डिटेल दे देंगे, सर आई एम मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, मेरा पिछला ग्रेड ये था वो था, so the other person is not going to pay attention. So make sure that you are having the necessary elements, but at the same time you are avoiding unnecessary details. When considered with a you view, ठीक है ना, जब आप उनके ऊपर फोकस करते हुए जिसको आप कम्युनिकेशन में एड्रेस कर रहे हो, instead of explaining everything about yourself, you are only adding those things which the other person required or would need to know about you. Only add those things. Concise messages are inherently more interesting to recipient. So recipient को क्या चाहिए कि जो उससे आपको काम है और उससे relevant आप हैं कौन. You get it? This is one example. इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई एडवर्टाइज करना है, आपने जनरल पब्लिक से आप एड्रेस कर रहे हैं. So instead of telling the things about from your point of view, कि we have been doing this and that, tell them that you needed this. Get it? Because you needed this, we have provided these products or things like that. So it has to be short, it has to be complete. When combined with the you view, आपने अपने आप को, you have to feel yourself in the place of the receiver or the person for whom the message is drafted, कि उसको आपकी unnecessary details नहीं चाहिए, but that person should know completely about जो चीजें interest की हैं, relevant हैं, only add those things into your message. Get it? So next is clarity. Do not write vague things. Clarity means getting your message across to the receiver will so the receiver will understand what you are trying to convey. Message should be clear. ऐसी vague और unclear बातें जिसको 1 घंटा लगा के भी समझना है कि आपका purpose क्या था. You want that person to interpret your words with the same meaning you have in mind. Accomplishing that goal is difficult because, as you know, individual experiences are never identical and words have different meanings to different persons. So remember this clarity.
You have to work on to this to make the things clear. Here are some specific ways to help make your message clear. Choose short, familiar conversational words. That is why jargons और वो चीजें नहीं use करें. Construct effective sentences and paragraphs. ठीक है? जो आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया गया था ना, थीसिस स्टेटमेंट होती है, पैराग्राफ होते हैं, वो आपका एक 10 लाइंस के लेटर में भी मैटर करता है कि अगर आप पढ़ते हुए वो रीडर फ्रेंडली ही नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन जम्बल्ड अप है, कोई उसमें पैराग्राफिंग नहीं है, द अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. अचीव एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी एंड लिसनेबिलिटी. इसी तरह ऐसे वर्ड्स यूज करें जो अगर आप सिंपली बोल रहे हैं तो दूसरा सुने, और अगर आपने रिटन फॉर्मेट में दिए तो दूसरा उसको पढ़े. गेट इट? Include examples, illustrations and other visual aids when desirable. Get it? So like the way I am presenting, presentation is a way to do this. कि आपके एक लंबे चौड़े में जो written notes हैं, अगर मैं उन पे presentation बना के आपको समझा रही हूँ, it is for the purpose of making it clear. आपसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, मैंने पहले जो नोट्स थे उनकी मैंने नोट्स भी शेयर किए और प्रेजेंटेशन भी. Why while teaching we are now आपको भी बल्कि हर उसके लिए एक डिटेल लॉन्ग नोट्स के ऊपर बेस्ड प्रेजेंटेशन जो है, दैट इज फॉर दिस पर्पस टू मेक थिंग्स क्लियर. अंडरस्टैंड? ये समझ आ गया कि नहीं? एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. व्हाट डज, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस इन पैराग्राफ? अगर मैं यही सवाल दे दूं, वुड यू एबल टू आंसर? Yes, ma'am. ठीक है. So remember this time you're not going to have a mid exam or a final year जिसमें आप मुझे रटे रटाए और छपे छपाए आंसर देंगे. You have to give examples, so you need to understand each and every written line. Correctness. The term correctness as applied to business messages mean right level of language and accuracy of facts. Correct दे, wrong कुछ ना दे. Figure words correctly लिख कर दें. If the information is not correctly conveyed, the sender will lose credibility. आपने इसकी एक एग्जांपल ये है कि पहले CVs आप लोग बनाते थे. CVs also a communication. ठीक है? If you can see the figure example, वो क्या है? No bullshit. ठीक है? तो जो लंबी चौड़ी लोग अपने आप की मेंबरशिप में फलां में भी हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ऐसी चीजें कर देते थे, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एट गुड. और अब जो सीवीज आप ड्राफ्ट करते हो, दे आर वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइजली रिटन बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड एडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनटू दैट. इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्टली कन्वेड, द सेंडर विल लूज क्रेडिबिलिटी. सो आपकी क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद कम हो जाती है अगर आप एक भी गलत बात शामिल करते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर विल विटिएट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सेम वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही नहीं हो सकता अगर आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है. ट्रांसमिशन ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर विल स्पॉइल पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म. टू कन्वे करेक्ट मैसेजेस, ग्रामेटिकल एरर्स शुड आल्सो बी अवॉइडेड. ठीक है? You should not transmit any message unless you are absolutely sure of its correctness. Timings, ये वो, everything should be correct, fact based. Get it? Consideration. Another C, consideration. Consideration. पहले आप मुझे बताओ वर्ड कंसिडर का मतलब क्या है? सिंपली बताओ, कंसिडर करने का मतलब क्या होता है? यस, कुछ भी फर्ज करना, कंसिडर करना. ठीक है, एज्यूम करना, बट एज्यूम किस वे में करना? मैं आपसे कहती हूँ कुछ तो इसको कंसिडर करो, तो मेरा मतलब ये होता है कि आप उसको अपने अलावा दूसरों के उस पे देख सकते हो. Consideration means that you prepare every message with the recipient in mind and try to put yourself in his or her place. जो आपको एक बैरियर बताया था लिंग्विस्टिक डिफरेंस का, कि मैं अब अगर ऐसे वर्ड्स यूज कर लूं which are not ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो हैं, and I can give you example of few. ठीक है? सिमेंटिक्स और इस तरह की चीजें जो कि मुझे पता है कि अभी नहीं समझ ही नहीं आ सकती. ठीक है? तो फिर मेरे मैसेज की एफिकेसी नहीं रहेगी. बेशक मेरा इंप्रेशन बड़ा पड़ जाए कि मैंने बड़े बड़े इंग्लिश के लफ्ज यूज कर लिए, लेकिन अगर दूसरा शख्स जो इसको समझ ही नहीं सकता,
So you, whatever is your level, consideration means that you prepare every message with the recipient in mind. ठीक है? Think of yourself into his or her position and then think how this message is going to affect. Try to visualize your reader or listener with their desires, problems, circumstances, emotions and probable reactions to your request. कि वो कैसे इसको लेंगे. Then handle the matter from their point of view. अब इसमें मैं एक मिसाल देती हूँ. आप लोग, एक हमारा एज अ नेशन एक एटीट्यूड बन गया है हर वक्त जो है ना कुछ बता के मांगने का, ये है. प्लीज डोंट डू दैट. अगर आप एप्लीकेशंस लिख रहे हो, लेटर्स लिख रहे हो, बी वेरी फॉर्मल. ठीक है? डू नॉट, ये जो कंसिडरेशन है ना, माज़गत इसको बड़ा रॉन्गली इंटरप्रेट किया जाता है. मसलन एक ऐसी स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने में सिंपैथेटिक सी, जिसमें ये समझा जाता है कि दूसरा शख्स जरूर ही हमें ये लिवरेज दे देगा और वो. सो प्लीज कंसिडरेशन जो है इसको भी सही टर्म्स में एनालाइज करना बहुत जरूरी है. ठीक है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. ठीक है? Then handle the matter from their point of view. This thoughtful consideration is also called you attitude. Empathy, the human touch and understanding of human nature. It does not mean, ठीक है ना, however, that you should overlook the needs of your organization. So जब organization level पे आप बात कर रहे हैं तो आपने ये सारी चीजें possibly जहन में रखना. So consideration is the most, wrongly interpreted as well. So इसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट द क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल मीन. कंसिडरेशन. सेकंड पॉइंट ट्राई टू विजुअलाइज. यस मैम. देखो, समटाइम वी थिंक दैट ये चीज इस तरह से है. गेट इट? मैंने तो आपको नोट्स दे दिए क्योंकि मेरे ख्याल में वेरी क्लियरली रिटन है, सब कुछ लिखा हुआ है. अब आप क्यों नहीं इसको समझ रहे? लेकिन आई मस्ट कीप इन माइंड दैट हाउ माय मतलब रीडर्स, फॉर मैं यहाँ तो हमारा टीचर और स्टूडेंट का रोल है ना. थिंक ऑफ सम अदर सिचुएशन. थिंक ऑफ अ बिजनेस सिचुएशन. ठीक है ना, कि आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर दी, सब कुछ बड़ा अच्छा कर दिया, बट और आपने कहा कि जी इसकी तो कॉस्ट ये बन गई है. गेट इट? बट अगर आपकी जो जिन लोगों के लिए आपने प्रोडक्ट तैयार की वो उसको उनके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है. गेट इट? ये तो होगी प्रैक्टिकल टर्म में. सो यू हैव टू विजुअलाइज. जब आप व्हेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंस ऑफ मैसेज. ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा भी हो गई. इवन देन you wanted to advertise that or you wanted to tell about that product, so you have to tell you have to consider. अब आपके लिए फॉर एग्जांपल जिसने प्रोडक्ट तैयार की उसके नजदीक वो एक कोई भी चीज है 500 और 600 के कोई मीनिंग्स नहीं है कि 500 रुपए की तो है. जैसे ये प्रॉब्लम हमें यंग जनरेशन क्या है, इट इज ओनली फॉर 500 रुपीज. बट इफ यू थिंक ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जिन लोगों के लिए बनी है वो खरीद ही नहीं सकते 500 रुपए की, या 500 रुपए उनके लिए बहुत ज्यादा है. 500. सो इवन बट यू कैन नॉट somehow you cannot avoid that. Then you have to convey your message that if you spend this 500 for one time, it is going to serve the purpose for longer time periods. ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसे करके आपने अपना मैसेज कन्वे करना है. थिंक ऑफ योर रीडर और लिसनर कि वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे. रीडर और लिसनर का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए. इंटरेस्ट को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे. ये ना समझे कि आपको समझ आता है तो उन्हें भी आ जाएगा. if you can comprehend it, if you know this, if you understand it, if you can feel it that way, so other person is going to take it that way as well. Think of their desires, problems, circumstances, emotions, and probable reactions to your request. ठीक है? Even you are asking for a leave, think of this कि आप काम छोड़ के चले जाएंगे. Is there anyone else जो उस काम को उन दिनों में पूरा कर सकता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन देके जाए? Get it? Yes, then handle the matters from their point of view. This thoughtful consideration is also called you attitude.
empathy, human touch, understanding of human nature. ये सारे both ways में, whether you are in a superior level or in a junior level, think of each and everything. हमारे यहाँ what happens that mostly junior level से senior level की तरफ तो consider किया जाता है in office situation, not in teaching situation. उसमें उलट होता है, sorry to say. और मगर senior to junior नहीं होता. Get it? When you are changing the timings, think of it. Is it possible for each and everyone? There are a few people. अब मैं आपको एक example देती हूँ. हमारे गवर्नमेंट ने ऑफिस टाइमिंग्स आपको पता है पिछले 2 सालों से 9 o'clock कर दिए. ऐसा हुआ था ना? पहले ऑफिस टाइमिंग्स 8:30. अच्छा, उसमें उन्होंने ये रेफरेंस रीजन दिया कि ऑफिसेज में अगर आप चले भी जाएं 8:30 बजे 8:30 और 9 o'clock तो कोई आया नहीं होता है ना. लेकिन तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट एट 8 और 8:30, व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट एट 9 एंड सेम वे एंड भी उसका जो है ना थोड़ा डिले कर दिया. लेकिन दे हैव फॉरगॉटन इट के आपके स्कूल टाइमिंग्स क्या थे. हमारी मेजॉरिटी, हमारे यहाँ तो स्कूल बसेस या स्कूल्स के अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं है. यू कांट कंपेयर योर सोसाइटी विद द वेस्टर्न सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज देयर. वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की टाइमिंग्स अर्ली होती हैं और ठीक है बच्चों की पिक एंड ड्रॉप जो है पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी नहीं होता. हर स्कूल की अपनी बस या स्कूल ही नियरेस्ट होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है. यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तो मेजॉरिटी फादर्स ऑफिस जाते हुए या मदर्स ऑफिस अपने वर्क प्लेस पे जाते हुए रास्ते में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते जाते थे. तो इट कॉज द लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द वर्किंग पीपल जिनके बच्चे स्कूल गोइंग और वो थे. सो इट कॉज द लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर. सो डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि मैं तो 9 बजे उठ के कंफर्टेबली आई शुड स्टार्ट the timings like that. Think of the other people. Get it? Okay, हमने कितने कर लिए? Concentration, correctness, clarity, niceness. 5 कर लिए. There are only 2 and I have how much time? मैं उनका सिर्फ नाम पढ़ देती हूँ जल्दी से, फिर हम अगली क्लास में इसको ज्यादा डिस्कस. Courtesy. Courteous messages help to strengthen present. Courteous होना चाहिए. मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ती और मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगी. बट यू हैव टू बी एबल टू नो दैट. ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी आज ही. एंड यू शुड, क्योंकि हमारे पास अभी ईद से पहले सिर्फ एक क्लास है फ्राइडे की, है ना. उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी. सो आई वांट यू टू फिनिश विद दिस ताकि जब आप आफ्टर ईद वेकेशन आए तो मैं इस पे बेस्ड आपको असेस कर सकूं. कॉन्क्रीटनेस मीन्स, कॉन्क्रीट मीन उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कॉन्क्रीट की बनी हुई होनी चाहिए कि जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाए. डेट्स और वो. यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स. पुट एक्शन इन योर वर्ड्स. ठीक है, कॉन्क्रीट सॉरी चूज विविड इमेज. इन्हीं वेग नहीं होना चाहिए. इन दो को खुद पढ़ें, कर्टसी को भी और कॉन्क्रीटनेस को भी. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ओर से इसी पे बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस करूंगी. ठीक है, अल्लाह हाफिज. पहले अटेंडेंस मार्क करवा लो अपनी, फिर अल्लाह हाफिज करना. ओके, नाउ आप सब लोग करते क्या हैं कि स्पेशली उसमें रेलेवेंट आप समझते हो कि आपने नोट्स आ गए पढ़ लेंगे. बट यू इफ यू आर नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास, जो उनके स्लाइट डिफरेंसेस हैं वो आप फिगर आउट नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी मोर अटेंटिव इन योर क्लासेस. सी यू ऑन फ्राइडे. और उसमें मैं आखिरी 2 को एक्सप्लेन कर दूंगी. बट प्रिपेयर देम वेल. उनको अच्छा सा इनको समझो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब इनके what is the difference between conciseness and consideration, so you should be able to know that and answer me my questions. Get it? Okay, Khuda Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah. खुदा हाफिज.